A very good morning to all my dear students. I hope all of you are doing well. So in our last class, we have started a new chapter of business studies, that is chapter number 8, controlling. We have started the fifth function of management, right? And it is related with comparison of actual and planned performance and finding out the deviations. Yesterday, we have discussed the meaning and nature of controlling. Today, we are going to start with the remaining points of importance. Yesterday, we have discussed the first, second, third, and fourth point of importance rule. It helps us to check out the accuracy of our targets or standards. It helps us in making efficient use of resources. With the controlling function, we make proper utilization of our resources. Then after, because in controlling function, the workers are provided guidance to solve out their problems. Managers guide them to solve out the problems and to come out from the problems. Okay. Now ensures order and discipline. और डिसिप्लिन आएगा बार बार इफ आई एम चेकिंग योर परफॉर्मेंस तो हो सकता है आपकी साइड से डिसऑनेस्टी के चांसेस थोड़ी सी कम रहे, फ्रॉड के चांसेस थोड़ी सी कम रहे. तो अगर हम कंट्रोलिंग फंक्शन को तो उससे हमारी एक्टिविटीज में एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा. सो यार इट इज रिटन दिस इज अ न्यू पॉइंट ऑफ टुडेस क्लास, राइट? कंट्रोलिंग एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन बिकॉज व्हाइल कंट्रोलिंग द मैनेजर्स कीप कंप्लीट एक्टिविटीज को क्रॉस चेक किया जाता है तो वर्कर प्रॉपर तरीके से काम कर पाते हैं. तो कंट्रोलिंग एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन. The sixth one is controlling facilitates coordination in action. कंट्रोलिंग फंक्शन की वजह से अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन आता है. वे काम करते हैं तो उन सब की एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन लाना पॉसिबल होता है. मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ. हैव अ लुक. सपोज I have decided to produce 1000 unit in upcoming week. 1000 units is my target for my upcoming week. Now there will be different departments, right? Maybe I have given the instructions to purchase department to purchase the raw material according to 1000 units. Then after I have given instructions to production department to produce 1000 units. Then I have coming week. ये हमने set कर लिया. Now in case when purchase department has tried to purchase the raw material, उन्हें पता चला कि हम जो particular raw material खरीदते हैं उन सप्लायर के ओनली 900 यूनिट्स, ठीक है, और हम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करके रखते हैं. हम जनरली अपने रॉ मटेरियल सप्लाई को क्विकली बेसिस पे चेंज नहीं करते. तो ऐसे में जब हम कंट्रोल करेंगे किसकी एक्टिविटी को, परचेज लेगा, दैट रादर देन 1000 द डिपार्टमेंट इज एबल टू परचेज ओनली 900 units, the raw material which can produce 900 units. Now what will we do? We will just change the target of production department and market this input. हम इसी के अकॉर्डिंग उनका टारगेट सेट करेंगे. भाई 900 जितना इनपुट अवेलेबल है तो हम 850 या 890 का टारगेट सेट कर देंगे ताकि कुछ वेस्टेज भी हो तो एटलीस्ट हमारा टारगेट रिलेटेड विद मेंटेनिंग कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. Now have a look. These are the points of importance of controlling. We have already covered. Number first, this will be the importance of each and every function of management. Helps in achieving organizational goal. Performing this function, we will ultimately achieve our goal. Then it helps us to check whether our standards are accurate or not. Then it helps us to make proper utilization of resources. It helps us employees and facilitates coordination in action. Now have a look. क्या कह रहे हैं ये देखिए. To make sure employees focus on work and follow the method of production as per the plan, the management of Amara Limited decided to install CCTV in the factory for monitoring the activities of workers. तो definitely controlling होगा. Plus यहाँ पे कह रहे हैं to make sure that work is accomplished as per the plan. ये keywords है. हो सकता है एग्जामिनेशन में जो केस स्टडीज आए उनमें यही टू द प्लान इट इज रिलेटेड विद कंट्रोलिंग फंक्शन. ठीक है, अगर हम ये इंश्योर करते हैं कि प्लान के अकॉर्डिंग काम हो तो इट इज रिलेटेड विद कंट्रोलिंग फंक्शन. नेक्स्ट देखिए व्हाट इज रिटन. With the help of controlling, the management can know not only about the deficiency in the performance, but it also helps the manager to know whether the standards or plans are. Importance का जो आपको इस पॉइंट में इस क्वेश्चन में हाईलाइट होता हुआ नजर आ रहा है. इंपॉर्टेंस का एक पॉइंट यहाँ पे हिडन है. टेल मी द आंसर. द क्वेश्चन हैज रिटन कि सिर्फ हमारी परफॉर्मेंस की डेफिशिएंसी नहीं पता चलती, हमारे प्लान में भी प्लान और स्टैंडर्ड्स की क्या पोजीशन है. यस सुशांत, वेरी गुड बेटा. मैम जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड. परफेक्ट. एकदम सिंपल सा आंसर था कि कंट्रोलिंग हमारी स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी को चेक करता है. ओके नेक्स्ट वन. Mr. Ankit is a chief manager in a well-known MNC producing shoes. He called the production manager of his unit and told him to keep a constant watch on no possibility of adverse result. ये कह रहे हैं चेक करता रहे सारी एक्टिविटीज को ताकि कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं आए. As long as company runs its operation, employees at all level will adopt it to achieve the results.
नहीं गिवन है तो हमारे लिए बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना दैट ऑब्वियसली इट इज रिलेटेड विद कंट्रोलिंग फंक्शन। बट जब ये सेम क्वेश्चन आपको 5 to 6 चैप्टर्स के सिलेबस वाले पेपर में मिलता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नहीं समझ पाते कि ये वॉच रखा जा रहा है आपकी सारी एक्टिविटीज पे, यानी चेक किया जा रहा है वर्क की एक्टिविटी पे ताकि कोई भी एडवर्स रिजल्ट ना हो। तो जब हम चेक कर रहे हैं तो चेकिंग इज रिलेटेड विद कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिर आपको कंट्रोलिंग के 3 फंक्शन में 4 मार्क्स में आता है। बच्चे इसमें गलत फंक्शन आइडेंटिफाई कर लेंगे क्योंकि डायरेक्टिंग फंक्शन जो अभी हमने नहीं पढ़ा है वो भी वर्कर की एक्टिविटी को चेक करने से रिलेटेड है। तो अगर आपने इसमें डायरेक्टिंग आइडेंटिफाई कर दिया और उसके 3 फीचर्स एक्सप्लेन कर चलिए आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग। तो हमें बहुत ध्यान से केस स्टडीज करते टाइम जो भी कीवर्ड्स है उनको अंडरलाइन करके रखिए ना कि ये इस पॉइंट का कीवर्ड आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, तो आगे देखिए, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये अगर जुड़े हुए हैं तो इन दोनों का क्या लिंक है, कैसे ये दोनों इंटरलिंक्ड है। तो आप जरा फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के ऐसे ट्विन्स है जिनको अलग अलग करना पॉसिबल ही नहीं है। विदाउट प्लानिंग आप कंट्रोलिंग नहीं कर पाओगे, नहीं रहेगा। प्लानिंग है तो कंट्रोलिंग होगी और कंट्रोलिंग होगी तो ही प्लान अचीव होंगे, अदरवाइज प्लान अचीव नहीं हो पाएंगे। तो दोनों के बीच में बहुत बढ़िया रिलेशन है। मैं आपको पहले आपका एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर रही हूँ, देन आफ्टर वी विल मूव टुवर्ड्स द पॉइंट्स फ्रॉम योर बुक। ओके, हैव अ लुक। देखिए जरा, मैंने प्लान किया, क्या प्लान किया कि मुझे मेरे 12th बोर्ड्स में, आपने प्लान किया आपको अपने 12th बोर्ड्स में 90 प्लस का टारगेट सेट करना है। लिया, फर्स्ट प्री टर्म हो गए, हमने मजे से प्री टर्म दे दिए, हमने मार्क्स का इवैल्यूएशन ही नहीं किया, यानी हमने क्रॉस चेक नहीं किया। हमारे परसेंट बने फर्स्ट प्री टर्म में 69, हमने क्रॉस चेक नहीं किया, हमने कहा ठीक है हमारा तो बोर्ड के लिए 90 प्लस का टारगेट है, मजे में ले लिया, हमारा रिजल्ट आया 71%। थर्ड प्री टर्म आए, हमने फिर उसको किया और हमारा रिजल्ट रहा 70%। ऐसे में मैंने ये जो प्लान बनाया है 90% प्लस का, क्या आपको लगता है कि ये अचीव हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हम क्रॉस चेक कर ही नहीं रहे हर स्टेज पे। जब हम 70% पे ही चला, रिजल्ट इसी लेवल तक रह जाए, बट तो मेरा प्लान भी फेल है। 90 प्लस का टारगेट है, सिर्फ टारगेट ही रह जाएगा, एट लास्ट आपका रिजल्ट 75 to 80 ही रह जाएगा, राइट। आपका ये जो टारगेट है वो टारगेट को यूजफुल नहीं रहेगा। कर लेती, क्रॉस वेरीफाई कर लेती कि मैंने मेरा टारगेट सेट किया था 90 प्लस, बट मेरा रिजल्ट तो आ रहा है केवल 69%। क्या मैंने अपने लिए टारगेट बहुत हाई सेट कर दिया? इफ यस, तो मैं अपना टारगेट थोड़ा सा रिड्यूस कर दूंगी, और अगर तो मैं अपने एफर्ट्स को इंप्रूव करना शुरू कर दूंगी। अगर मैं ये करूंगी तो ही एट लास्ट मेरा ये जो टारगेट है 90 प्लस का ये अचीव हो पाएगा, अदरवाइज नहीं। तो अगर मैंने कंट्रोलिंग नहीं किया तो प्लान बनाने का केस, मैंने प्लानिंग ही नहीं की तो मैं एट लास्ट क्रॉस चेक नहीं कर पाऊंगी कि मैंने अपना काम बढ़िया किया है या नहीं किया। मेरा रिजल्ट 70% आ रहा है, मैंने अपने लिए कोई टारगेट सेट किए ही नहीं। जब मैंने अपने लिए कोई टारगेट ही डिसाइड नहीं किए तो इन दैट सिचुएशन आई वाज पॉसिबल ही नहीं है, और पॉसिबल ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आपका कोई रिजल्ट एनालिसिस हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली प्लान So basically both these functions, planning and controlling, the primary and the last function of management are inseparable twins of management. आपको याद होगा जब आप प्लानिंग की इंपॉर्टेंस, स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग फंक्शन कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए एक बेस रेडी करता है, एक स्टैंडर्ड रेडी करता है। तो जब आप देखेंगे इन दोनों के रिलेशन को तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, आपको लिखा हुआ है नेचर एंड कंसेप्ट। नेचर एंड कंसेप्ट, ये दोनों का मीनिंग समझने की कोशिश करोगे तो मीनिंग पढ़ के आपको पता चल जाएगा दैट बोथ दीज फंक्शंस आर इंटररिलेटेड। फर्स्टली दे हैव गिवन यू द मीनिंग ऑफ प्लानिंग, ये पैराग्राफ आप सबको आता है। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन, इट इज टू बी डन व्हेन इट इज टू बी डन एंड हु इज गोइंग टू डू। ऑल्सो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वही चीज लिखी हुई है बहुत सिंपल लैंग्वेज में जो हमने चैप्टर 4 में पढ़ी है। ये देखिए कंट्रोलिंग के बारे में क्या लिखा हुआ है। कंट्रोलिंग मीन्स कीपिंग अ चेक दैट एवरीथिंग डेविएशन देन टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स टू स्टॉप दैट डेविएशन। कंट्रोलिंग का मीनिंग ये चेक करना है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। इन केस नहीं हो रहा है तो उसको प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करवाना। प्लान के कंट्रोलिंग का मीनिंग हमें क्लियर कर रहा है कि कंट्रोलिंग फंक्शन हम क्यों करते हैं, इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द प्लान, राइट, इन ऑर्डर टू इंश्योर द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, यानी बोथ आर इंटररिलेटेड, दोनों का आपस में कुछ ना कुछ लिंक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड जुड़े हुए। जैसे मैं और आप, हम इंटरलिंक्ड है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना कहीं ना कहीं के साथ तभी पढ़ा पाऊंगी जब आप पॉजिटिविटी के साथ रिस्पॉन्स देंगे, और आप पॉजिटिविटी के साथ तभी रिस्पॉन्स दे पाएंगे जब मैं पॉजिटिविटी के साथ पढ़ाऊंगी। तो दीज बोथ एक्टिविटीज आर इंटर रिलेटेड। वैसे ही प्लानिंग और कंट्रोलिंग है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, वेट फॉर अ सेकेंड,
कोएग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है आपको दैट दीज फंक्शंस ऑलवेज कोएग्जिस्ट, ठीक है, एक साथ ही एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, वन फंक्शन डिपेंड्स अपॉन द अदर फंक्शन। क्यों डिपेंड करते हैं? वेरी सिंपल, the controlling function compares actual performance with planned performance, and if there is no planned performance, then controlling manager will not be able to know whether the actual performance is okay or not, and if we have not prepared any plans, then we won't be able to compare. तो जो बेस है, जो यार्डस्टिक है कंट्रोलिंग वाली, वो यार्डस्टिक प्लानिंग ने ही दी है, प्लानिंग ने ही कंट्रोलिंग को बेस दिया है, राइट? आगे देखिए, प्लानिंग भी कंट्रोलिंग पे डिपेंड है, क्योंकि प्लान खाली पेपर का इंप्लीमेंटेशन। आप याद कीजिए प्लानिंग प्रोसेस का 7th पॉइंट था फॉलो अप। फॉलो अप यानी क्रॉस चेक कर रहे थे वेदर ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू प्लान और नॉट। इट मींस वी वर पे। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, the controlling function makes sure that everyone follows the plan strictly. Continuous monitoring and check and controlling function make it possible that everyone should depend है और controlling भी planning पे depend है. So both these are interlinked and interdependent for successful execution of both functions. These both must support each other. ठीक है, एक दूसरे को support करेंगे तो ही गोल अचीव होगा, otherwise नहीं होगा. Example you have to read by yourself. जो example given है वो आप अपने आप पढ़ेंगे. Next one. Both are forward looking as well as backward looking. कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग, ये हमने कंट्रोलिंग के थर्ड पढ़ा था. इट इज बैकवर्ड लुकिंग क्योंकि हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि हमने जो एक्चुअल काम किया वो प्लान के अकॉर्डिंग है या नहीं. तो एक्चुअल काम भी पास्ट में हो गया एंड द प्लान्स आर आल्सो प्रिपेयर्ड इन पास्ट. तो पास्ट से बाद एक रिपोर्ट बनाई जाती है और फिर हम सॉल्यूशंस करते हैं हमारी प्रॉब्लम्स का. तो ये पॉइंट है. और प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, ये तो आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है. दैट प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है क्योंकि प्लान बनाते टाइम हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंस को और प्रीवियस ईयर के कंट्रोलिंग रिकॉर्ड को जरूर देखना पड़ता है. हमारा जो कंट्रोलिंग फंक्शन होगा उसके बाद हम एक फीडबैक रिपोर्ट रेडी करेंगे, जब बैक रिपोर्ट को जरूर चेक करेंगे. ये पॉइंट हम बुक से रीड कर लेते हैं. हैव अ लुक एवरीवन. प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग. Controlling is backward looking because like a post-mortem of past activity, the manager looks back to previous year planning. फ्रॉम स्टैंडर्ड फिर फुल स्टॉप है या कॉमा लगा लेना, फिर नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. प्लानिंग इज आल्सो बैकवर्ड लुकिंग बिकॉज प्लानिंग इज गाइडेड बाय पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड फीडबैक रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन. आपको फर्स्ट पैराग्राफ में हमें पास्ट को देखना पड़ेगा. नाउ प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग बिकॉज प्लान्स आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर फ्यूचर. तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है. एंड कंट्रोलिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग because we not only compare the actions, reasons for deviations, and we just try to solve out our problems. तो वो solving तो फ्यूचर में ही होगी. अब वो प्रॉब्लम ना हो तो अब ना हो यानी फ्यूचर में ना हो. तो both these any doubt at any point. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आपको दिया हुआ है प्लानिंग इज प्रिस्पेक्टिव वेयरएज कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव. प्लानिंग आपको प्रिस्क्राइब करता है कि कैसे काम करना चाहिए, एडवाइस देता है. ठीक है ना, ये काम ऐसे करना चाहिए. पहले जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो वो हमें प्रिस्क्रिप्शन देता है, भाई आने वाले 3 दिन में ये करना है, अगर आपको खांसी जुकाम है आपको ये काम नहीं करना और ये काम करना है. और फिर अगर 3 दिन बाद हम सही हो जाते थे तब वो हमारा इवैल्यूएशन करता है. ठंडा पानी पिया था क्या, गर्म गार्गल्स किए थे या नहीं किए थे, वो क्रॉस वेरीफाई करेगा कि आपने जो कोर्स ऑफ एक्शन बताया दवाई टाइम पे ली थी या नहीं ली थी. प्लानिंग प्रिस्क्राइब यू द वे इन व्हिच यू हैव टू परफॉर्म एंड कंट्रोलिंग इवैल्यूएट दैट वेदर यू आर परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड वे और नॉट. कंक्लूजन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आपने कंक्लूजन नहीं लिखा है तो आप मान कह रहे हैं द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड. दोनों को अलग किया ही नहीं जा सकता. दीज आर द ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट. कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे एक दूसरे के. नाउ हैव अ लुक. 2 क्वेश्चंस. One statement is given. There is a close and reciprocal relationship between planning and controlling. Explain the statement through an example. हो सकता है एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन चेंज करके फिलअप या एमसीक्यू फॉर्म में या रिलेशनशिप बिटवीन 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट नेम दैम. कौन से 2 फंक्शंस हैं? वो सबसे ज्यादा रिलेशनशिप, वैसे तो सारे फंक्शंस इंटर रिलेटेड है, बट अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग का आपस में विदाउट वन अनदर. नाउ लेट मी नो इज इट ओके टू एवरीवन? सबको समझ में आ गया है क्या? आज हमने सिर्फ एक ही टॉपिक पढ़ा है, कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग का रिलेशनशिप. कल हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास रहेगी. कुछ चैप्टर में एक ही एक्टिविटी में 15 क्वेश्चन सेंड करूंगी, हो जाएगा आपका उससे काम. केस स्टडीज होंगी, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, उनको जरूर ट्राई करना. और आज कंट्रोलिंग का प्रोसेस रीड करके रखना. ठीक है, यू हैव टू रीड. आपको खुद ही समझ में आ जाएगा. इतना सिंपल प्रोसेस है कि आपको खुद ही आराम से समझ में आ जाएगा. तो आप आज रीडिंग करके रखिए, देखते हैं कल की क्लास में आप एक्सप्लेन कर पाते हैं क्या. अगर आप एनीवन, एनी डाउट, एनी क्वेरी? No, as always. Okay then, have a nice day. Enjoy yourself. See you in the next class.